Good morning, students. In today's lecture, we are going to discuss about the partnership accounts, that is the fundamentals, one more questions. So, first of all, very short answer type questions. First question is, what interest on capital is applicable to the partners in the absence of partnership deed? ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਓਰਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? No interest on capital is to be provided to any partner in the absence of partnership deed. कोई किसी भी तरह का partnership deed ਦੀ absence ਵਿੱਚ interest on capital नहीं pay ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Similarly, second question is when the interest is charged from the partners in the absence of partnership deed. So similarly, like in the case of interest on capital in the absence of partnership deed, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਿਵਨ ਏ ਵਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪਰਸਨਸ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਰਿਟਨ ਔਰ ਓਰਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਔਨ ਵਿਚ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। Next है what rate of interest is allowed on partners loan to firm in the absence of partnership deed? 6% इंटरस्ट, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड की एबसेंस है उस केस विच इंटरस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिता जाएगा, ठीक है। इंटरस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिता जाएगा, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिता जाएगा, बट जिहड़ा लोन दिता है पार्टनर ने फर्म ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਤੇ 6% ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਐਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 6% ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਔਨ ਵਿਚ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਡਰਾਇੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਡਰੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਵਿਡਰੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਇਨਕਮ ਫॉर ਦ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਦ ਇਨਕਮ ਫॉर ਦ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮਸ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਔਨ ਵਿਚ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਕਮ ਫॉर ਦ ਫਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਨੇਮ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ what is fixed capital account? Fixed capital account, in this method capital contributed by the partners will remain fixed and will not be reduced or increased from year to year except there is a fresh introduction of capital or withdrawal of capital। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ
कैपिटल जिहड़ी आ फिक्सड रहेगी। कदों तक वो फिक्सड रहेगी? जदों तक जिहड़ी आ वो किसी भी तरीके नाल रिड्यूस नहीं होएगी, इंक्रीज़ नहीं होएगी, टिल द टाइम देयर इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैश कैपिटल, ठीक है, ਜਾਂ विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, ਜਾਂ नवीं कैपिटल ਜਦੋਂ तक नहीं आती, ਜਦੋਂ तक विड्रॉ नहीं की जाती, उदों तक ਜਿਹੜਾ वो फिक्स कैपिटल भी ਜਿਹੜਾ बैलेंस होएगा कैपिटल का, डेट रिमेन द फिक्सड। नैक्सट क्वेश्चन है वॉट इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स ने, एक फिक्सड असी पढ़ लिया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किहड़ा है? अंडर दिस मैथड द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स वुड फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये की होएगा जिहड़ा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है डैट विल फ्लक्चुएट, मतलब वो चेंज होंदा रहेगा, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने साल के शुरू में कोई कैपिटल प्रोवाइड की है तो उस तो बाद 2 मंथ्स बाद फिर उन्हें एडिशनल कैपिटल दी है, 3 मंथ्स बाद फिर उन्हें होर कैपिटल जी प्रोवाइड कर दी है, असी उन्होंने किहड़ा वा वो इंक्रीज़ वो कैपिटल अमाउंट जो इंक्रीज़ करी जावांगे। इट मीनस इन दैट केस द कैपिटल विल फ्लक्चुएट, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर देगी। क्लियर। नैक्सट है वॉट इज़ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की है? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किहड़ी है? वो डॉक्यूमेंट है जिहदे विच की है पार्टनरशिप दे रूल्स रेगूलेशनस जो भी आपस में पार्टनर्स दे विच डिसाइड होया वा उस एग्रीमेंट विच लिखिया होएगा, उस डॉक्यूमेंट विच लिखिया होएगा, उन्होंने असीं कहांगे पार्टनरशिप डीड। नैक्सट है वॉट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ फर्म। किन्ने मैंबर्स अलाउड ने, किन्ने पार्टनर्स अलाउड ने? 50 पार्टनर्स जिहड़े पार्टनरशिप विच अलाउड ने। वॉट इज़ द मिनिमम नंबर? 2 नंबर, मतलब 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। Next, in which ratio the profit and loss of the partners is divided in the absence of partnership deed। जदों partnership deed की absence होंदी है, याद रखना बच्चे, interest on capital, no interest on capital नहीं दिता जाएगा, interest on drawings नहीं दिता जाएगा, इंटरस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, जिहड़ा पार्टनर का लोन हैगा उस असीं 6% देवांगे। हुण क्वेश्चन की आया इन विच रेशो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पार्टनर्स इज डिवाइडेड इन द एबसेंस। किस रेशो में असीं डिवाइड करांगे, ठीक है। असीं इंटरस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिता, असीं इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिता, असीं इंटरस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 6% दिता। नाउ व्हाट विल बी द रेशो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पार्टनर्स इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, दैट इज इक्वली, इक्वल जिहड़ी डिवीजन आ की जाएगी, इक्वल डिवीजन जिहड़ी आ की जाएगी। मतलब पार्टनरशिप की जदों एबसेंस होंदी आ उस केस विच जिहड़ा प्रॉफिट एंड लॉस आ वो पार्टनर्स दे विच इक्वली डिवाइड किया जाएगा। क्लियर। नैक्सट बच्चे जो 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन आ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने। अगर तुहानूं इहदा ये क्वेश्चन आ जाते हैं तुहाडे वास्ते प्रैक्टिकल करना अटैम्प्ट करना भी बहुत आसान है तो क्वेश्चन का आंसर देना भी बहुत आसान है, ठीक है। की क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, when a fixed amount is withdrawn at the end of each quarter, for what period the interest on total drawings will be calculated। मतलब अगर फिक्सड अमाउंट असीं विड्रॉ करते हैं हरेक क्वार्टर के एंड विच, ठीक है, फिर जिहड़ा पीरियड ऑफ इंटरस्ट होएगा जिहड़ा ड्राइंग्स ते वो किद्दां कैलकुलेट होएगा, ठीक है। इहदा सिंपल क्वेश्चन जिहड़ा वा इहदा सिंपल तुसीं एक फॉर्मूला याद रखना वा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जो फर्स्ट ड्राइंग कट दी है मतलब असी जिन्ना टाइम बच गया फर्स्ट ड्राइंग्स नू विड्रॉ करन तो बाद प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स नू विड्रॉ करन तो बाद जिन्ना टाइम बच गया डिवाइडेड बाय 2। सो असी याद की रखना वा भावें सानू 3 मंथ्स ते क्वार्टर ते कहते होन, क्वार्टरली कहते होन, भावें 15 डेज ते कहते होन, भावें वो एट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ कहते होन, भावें लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ कहते होन। असी ये याद रखना वा कि असी जो कैलकुलेट करना वा जिहड़ा पीरियड कैलकुलेट करना वा उहदे विच इक्को फॉर्मूला याद रखना वा, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग देन डिवाइडेड बाय 2, उन्होंने असीं याद रखना। सो
अगर इस क्वेश्चन विच सानू क्या है, इस क्वेश्चन विच सानू क्या है, वॉट व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर वॉट पीरियड द इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड। मतलब क्वार्टर अगर 12 मंथ्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 12 ਮੰਥਸ ਦੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਮਤਲਬ 3-4 ਕੁਆਟਰਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਮੰਥਸ ਦੇ 4 ਕੁਆਟਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स जोड़े ने, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स, ठीक है। मतलब लाइक जनवरी फैबररी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर दिसंबर, सो 4 क्वार्टर्स जोड़े ने वो एक 1 ईयर के बनते हैं। उन्होंने क्या है कि विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब अगर फर्स्ट ड्राइंग होएगी दैट विल बी जनवरी फैबररी एंड मार्च, ठीक है। मतलब ਜਿਹੜੀ फर्स्ट ड्राइंग असी की है, ड्रॉ किया है, वो असी किया है जनवरी फैबररी एंड मार्च। सो ये लास्ट से असी जो वो विड्रॉ किया फर्स्ट ड्राइंग साड़ी इदों हुई है, ठीक है। उस तो बाद लास्ट से भी हुई होएगी, ठीक है। लास्ट से मतलब दिसंबर के लास्ट से, ठीक है। सो असी देखिए तो जनवरी फैबररी मार्च तो बाद कितने मंथ्स रह जाते हैं साढ़े को रह जाते हैं 9 मंथ्स रह गए, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर दिसंबर, सो 9 मंथ्स जोड़े रिमाइनिंग रह गए। और तो बाद अगर असी देखिए लास्ट क्वार्टर जोड़ा होएगा वो होएगा अक्तूबर नवंबर दिसंबर, मतलब दिसंबर के लास्ट से उन्होंने जोड़ा वा वो ड्राइंग्स नैक्सट ड्राइंग्स जोड़ियाँ होंगे लास्ट ड्राइंग्स वो विड्रॉ की, ठीक है। वो विड्रॉ कर दी और तो बाद कुछ लैफ्ट बच गया और तो बाद कुछ भी लैफ्ट नहीं बचा, सो प्लस आ गया 0, मतलब टाइम कोई लैफ्ट नहीं रहा। फर्स्ट ड्राइंग्स तो बाद 9 मंथ्स स्टिल रिमेनिंग इन आर हैंड, बट लास्ट ड्राइंग्स तो बाद कोई भी जोड़े मंथ्स जोड़े कोई भी टाइम पीरियड जोड़ा वा साढ़े को नहीं रहा, सो डिवाइडेड बाय 2, सो इट कम्स 9/2 मीनस 4.5, सो 4.5 मंथ्स का असी पीरियड कैलकुलेट करांगे जिहदे कि असी जोड़ा इंटरस्ट जोड़ा वा ड्राइंग्स का इंटरस्ट जोड़ा वा कैलकुलेट करांगे। आई होप बच्चे तुहानूं एक क्लीयर हो गया होएगा। नेक्स्ट, व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, व्हाट पीरियड ऑफ इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेट। सो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ मतलब अगर असी जनवरी की गल करते हैं, जनवरी द लास्ट मंथ लास्ट डे उहदा, उस तो बाद किन्ने रिमेनिंग मंथ्स रह गए ने, जनवरी तो सारा निकल गया होया, इट मीनस 11 मंथ्स रिमेनिंग बच गए साढ़े को, 11 मंथ्स रिमेनिंग। और तो बाद उन्होंने क्या है लास्ट ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉ, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट विड्रॉ कदों होएगा, दिसंबर होएगा, दिसंबर के लास्ट डे नूं होएगा, उस तो बाद कोई भी डेट सानू को नहीं बच जाती, सो इसका मतलब इत्थे आएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, सो ये कितना आएगा 11/2 मीनस 5.5 मंथ्स का जोड़ा पीरियड है उत्ते जोड़ा वा असी ड्राइंग्स का इंटरस्ट जोड़ा वा वो कैलकुलेट करांगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर व्हाट पीरियड द इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड। सेम तरीके नाल असीं करांगे। उन्होंने क्या फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ मतलब जनवरी फर्स्ट नूं जिहड़ी आ विड्रॉ जिहड़ी आ पहलों हुई है, फर्स्ट विड्रॉ कदों हुई है 1 जनवरी, कितना टाइम लैफ्ट आफ्टर रह गया, सारे मंथ्स पे ने, जनवरी फैबररी मार्च अप्रैल सारे मंथ्स पे ने, सो असीं लिखांगे 12 मंथ्स रिमेनिंग ने, ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉ, ठीक है, देन प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट विड्रॉ, मतलब लास्ट विड्रॉ कदों होएगी, दिसंबर विच होएगी, दिसंबर फर्स्ट नूं जिहड़ी है फर्स्ट विड्रॉ आएगी, मतलब उस तो बाद पूरा दिसंबर का मंथ पिया है, सो असीं लिखांगे 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 13/2 इट कम्स आउट 6.5। क्लियर। 6.5 मंथ्स से जड़ा वा असी जड़ा पीरियड निकलेगा जिते कि असी इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स जड़ा वा वो कैलकुलेट करांगे।
नेक्स्ट बच्चे फिलिप्स ने फिलिंग द ब्लैंक्स विच फर्स्ट है पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बाय द एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड अगर एग्रीमेंट होएगा तो ही जी पार्टनरशिप डीड है डैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। वो डॉक्यूमेंट जिहदे सारियां टर्म्स एंड कंडीशनस असीं लिखियां होंदियां रिगार्डिंग द पार्टनरशिप डैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पार्टनर्स आर कलैक्टिवली कॉल्ड। जो पार्टनर्स कलैक्टिवली कलैक्ट हो जाते उन्होंने असी जो पार्टनर जोड़े कलैक्ट हो जाएंगे उन्होंने असी कह देंगे फर्म है। नेक्स्ट है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट किहड़ा हुंदा वा जिन्होंने असी छू नहीं सकते। ठीक है, टैंजिबल हुंदा जिन्होंने असी छू सकते हैं। फिक्स एसेट्स जिहड़े ने वो करंट एसेट्स विच कुछ आइटम्स ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ मतलब ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है इन द एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट द पार्टनर्स लोन शैल कैरी एन इंटरस्ट ऑफ। जो पार्टनर एग्रीमेंट की एबसेंस है मतलब देयर इज़ नो एग्रीमेंट इन दैट केस द पार्टनर्स लोन शैल कैरी द इंटरस्ट ऑफ 6%। 6% इंटरस्ट जोड़ा वा वो दिता जाएगा जो एग्रीमेंट किसी तरह की एग्रीमेंट की एबसेंस है। क्लियर। नेक्स्ट इन द एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट अरेंजमेंट नहीं बच्चे एग्रीमेंट है द प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी शेयर्ड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द इक्वल रेशो। सो ये तुहानूं रिपीटेडली क्वेश्चनस जिहड़े इहदे विच पूछे जा रहे कि जो पार्टनरशिप डीड की एबसेंस हुंदी आ उस केस विच इंटरस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिता जाएगा, इंटरस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिता जाएगा, इंटरस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो 6% दिता जाएगा एंड द प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इन बिटवीन द पार्टनर्स इन द इक्वल रेशो। इक्वल रेशो में जिहड़ा वा पार्टनर्स नूं जिहड़ा प्रॉफिट एंड लॉस जिहड़ा उन्हां दे नाल शेयर किया जाएगा। सो नैक्सट बच्चे MCQs ने हाउ मैनी परसनस आर रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप। एटलीस्ट 2 परसनस जोड़े सानू रिक्वायर्ड होंगे है फॉर द पार्टनरशिप डीड। द फाउंडेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज़ अ पार्टनरशिप की फाउंडेशन की है द फाउंडेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज़ इनू असी ये की है 2 ऑप्शन सानू कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। एक हो सकता है कि असी कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हो सकता है, एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। सो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा कॉन्ट्रैक्ट आएगा। क्यों आएगा क्योंकि जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट में जो दूजे परसन की कंसेंट जो एग्रीमेंट में जोड़ा वा दूजे परसन की कंसेंट मिल जाती है। ये मतलब बहुत रिक्वायर्ड है कि अगर जोड़े सारे पार्टनर्स ने उस एग्रीमेंट से जोड़ा वा अपनी कंसेंट दें मतलब अपनी पॉजिटिव कंसेंट दें उस केस में ही जोड़ा एग्रीमेंट जोड़ा वा वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट जोड़ा आंसर होएगा वो कॉन्ट्रैक्ट ही होएगा। नो डाउट असीं कहते हैं कि पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, एग्रीमेंट जोड़ा है वो पार्टनर्स के है बट उस एग्रीमेंट ही रहेगा जो तक वो की है एक पार्टी वालों है। ठीक है, एक परसन वालों है। लाइक अगर ए तो बी है, 2 पार्टनर्स ने ए ने कोई एग्रीमेंट बनाया। ठीक है, ए ने एग्रीमेंट जोड़ा वा वो बी को फॉरवर्ड कर दिता, बी ने उन्होंने देखा बट उन्होंने एक्सैप्ट नहीं किया। उन्नी देर तक वो एग्रीमेंट रहेगा जो वो जो बी है उन्होंने भी अपनी कंसेंट दे देगा वो फिर की बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सो असी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप की फाउंडेशन की है कॉन्ट्रैक्ट। नैक्सट बच्चे एक्सप्रैस एग्रीमेंट्स आर जो एक्सप्रैस एग्रीमेंट्स होंगे ने इट कैन बी द ऑरल और इट कैन बी रिटन मतलब जिन्होंने एक्सप्रैस किया गया भावें उन्होंने रिटन फॉर्म में एक्सप्रैस कर दिता गया वा भावें उन्होंने ऑरल फॉर्म में एक्सप्रैस कर दिता गया। असी कहांगे कि एक्सप्रैस एग्रीमेंट्स आर रिटन और ऑरल। नेक्स्ट है इफ द फिक्सड अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, असी पिछे भी इन्हू सॉल्व करके देखा कि फर्स्ट डे अगर हरेक मंथ के फर्स्ट डे असी विड्रॉ कर रहे हैं दैन पीरियड कितना मंथ्स का पीरियड होएगा। अगर फर्स्ट डे है मतलब फर्स्ट डे मतलब 1 जैन तो जोड़े रिमेनिंग मंथ्स रह गए साढ़े को रह गए 12 प्लस 1 दिसंबर 1 मंथ रह गए डिवाइडेड बाय 2। सो इसका आंसर क्या आएगा 6.5 जोड़ा वा वो मंथ्स जोड़े आ वो साडा आंसर आएगा। एप्रोप्रिएट आंसर यही होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे इफ द फिक्सड अमाउंट इज़ विड्रॉन एट द मिड ऑफ द एवरी मंथ इंटरस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर। सो बच्चे इस क्वेश्चन में कि उन्होंने कहा वा कि मिडल ऑफ द मंथ मतलब हरेक मंथ के मिडल में जाके जोड़ा वा वो इंटरस्ट ऑन ड्रॉइंग्स असी कैलकुलेट करना। सो अगर मिडल की गल करिए मतलब जैन 15 असी 15 जैन फर्स्ट ड्रॉइंग जी साड़ी 15 जैन होएगा। इसका मतलब टाइम लैफ्ट कितना रह गया 11 मंथ्स
and 15 days. So ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 11.5. 11.5 months are still remaining. And लास्ट ड्राइंग कदों होएगी, वो 15 दिसंबर ਨੂੰ होएगी. इट मीनस 15 days are still are in our part. सो ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.5 ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਪਿਆ ਵਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2. ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 12 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2. ਸੋ ਇਹ ਆਏਗਾ 6 months. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ अगर फिक्सड अमाउंट विड्रॉ हुई है एट द मिड ऑफ एवरी मंथ इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 months. 6 months की कैलकुलेशन में तुहानूं दस दित्ती है कितना होएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इफ द फिक्सड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी month then the interest on drawings will be calculated अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब जैन द लास्ट 31st Jan. इट मीनस 11 months स्टिल रिमेनिंग. तो लास्ट दिसंबर भी आएगा, दिसंबर लास्ट होएगा बट दिसंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ दिसंबर लास्ट मतलब लास्ट डे तो बाद कोई डे ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. सो 11/2. सो ये आएगा 5.5. सो ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ आएगा 5.5. नैक्सट बच्चे इंटरस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड ऑन द इंटरस्ट ऑन कैपिटल जो भी असी कैलकुलेट करते हैं पार्टनर की इंटरस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल तो जी असी कैलकुलेट करते हैं. नैक्सट है करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज़ प्रिपेयर्ड वैन द कैपिटल्स आर ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी नन ऑफ दीज. ये क्वेश्चन बच्चे रिपीटेडली आ रहा है, फिलिप्स भी आ सकता है, 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ भी आया वा कि जो किसी तरह का एग्रीमेंट की एबसेंस है इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी निल. इन द एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी इंटरस्ट ऑन कैपिटल विल बी निल. इंटरस्ट नन ऑफ दीज कुछ नहीं दिता जाएगा. In the absence of agreement to contrary interest on money given as a loan to firm. ठीक है, पार्टनर ने जिहड़ा लोन दिता है फर्म ਨੂੰ अगर एग्रीमेंट की एबसेंस है इन दैट केस 6% इंटरस्ट जिहड़ा वा वो दिता जाएगा. इंटरस्ट ऑन मनी जिहड़ा कि पार्टनर वालों कंट्रीब्यूट किया गया वा टू द फर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अ पार्टनर हु टेक्स द पार्ट इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द एक्टिव पार्टनर. जिहड़ा पार्टनर रेगुलरली बिजनेस के कंडक्ट विच रेगुलरली काम करता वा दैट पार्ट उस पार्टनर नूं असीं कह दिंदे आ एक्टिव पार्टनर. नैक्सट बच्चे ट्रू फॉल्स ने. ट्रू फॉल्स विच फर्स्ट है, अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मड ओनली फॉर द लीगल बिजनेस. एक पार्टनरशिप फॉर्म जी असीं सिर्फ लीगल बिजनेस वास्ते ही बना सकते हैं, इलीगल बिजनेस वास्ते असीं पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते. नैक्सट है, इन द एबसेंस ऑफ एन एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. ट्रू. A partner who devotes more time to the business other than others is entitled to get the salary. एक पार्टनर जिहड़ा की आ बिजनेस नूं ज़्यादा टाइम दे रहा है, ही इज़ entitled to get the salary. फॉल्स, क्योंकि पार्टनर ਨੂੰ ਅਸੀਂ सैलरी नहीं पे करांगे अगर वो भावें टाइम डिवोट भी कर रहा वा क्योंकि उन्होंने की प्रॉफिट एंड लॉस में जो शेयर दिता जाएगा. नैक्सट इन द एबसेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्रॉफिट एंड लॉसिज आर शेयर्ड इन द कैपिटल रेशो. नो. इक्वल जी असी दी इक्वल जी असी उन्होंने में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नैक्सट है, करंट अकाउंट्स आर मेनटेन इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम. नो. करंट अकाउंट्स कदों प्रिपेयर किए जाते हैं, करंट अकाउंट उदों प्रिपेयर किए जाते हैं जो कैपिटल साडी फिक्सड हो. इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल सिस्टम वी प्रिपेयर द करंट अकाउंट्स. ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਕਸਡ ਹੋਏਗੀ उदों असी दोनों करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट भी जी प्रिपेयर करांगे. करंट अकाउंट जो स्पैसीफिकली याद रखना, करंट अकाउंट कदों असीं प्रिपेयर करते हैं जो फिक्स कैपिटल जी फिक्स कैपिटल सिस्टम असीं यूज़ करते हैं. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के केस में असीं करंट अकाउंट नहीं बनाते, असीं सिर्फ तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट जिहड़ा बनाने. नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द इंटरस्ट एट 6% ऑन लोन गिवन इफ टू द फर्म इफ द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट ऑन द इशू. इट्स ट्रू, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड जी वो साइलेंट होएगी, पार्टनरशिप डीड की एबसेंस होएगी, उस केस में जो पार्टनर लोन जो 6% जो दिता जाएगा.
Next है interest on partners capital is allowed at 6%. Again it's false. Interest on partners loan ਜਿਹੜਾ 6% ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ in the case of absence of the partnership deed. Interest on money advanced by the partner as a loan to the firm shall be paid even if there are losses in the business. ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਈਵਨ ਇਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਲੌਸਸ ਫਰੋਮ ਦ ਪਾਸਟ ਈਅਰਸ. Next है interest on drawings is always calculated for full year on total drawings. No, it's false. Why it is false? क्योंकि ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ interest on drawings ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਈਅਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਈਅਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ drawings interest on drawing. It depends upon the date at the time when that person withdraw the amount. ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ amount ਜਿਹੜਾ withdraw ਕੀਤਾ it all depends on that. Otherwise ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਈਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥਸ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਇਫ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਰ ਵਿਦਡਰਾਨ ਔਨ ਦ ਫਰਸਟ ਡੇ ਆਫ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਈਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਔਨ ਟੋਟਲ ਡਰਾਇੰਗਸ ਫॉर 5.5 months 5.5 month. It's again false. ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਾਲਸ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਡਰਾਇੰਗਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ. ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਿਦ ਡਰਾਇੰਗਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ. ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਟਰੂ ਬਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ. ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ. ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे बाय डेबिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी इंक्रीज द कैपिटल. बाय डेबिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी इंक्रीज द कैपिटल मतलब असी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इत्थे बना रहे हैं. यह उहदी डेबिट साइड है यह उहदी क्रेडिट साइड. इत्थे असी बैलेंस लिखते हैं ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈ ਡੈਬਿਟਿੰਗ ਦ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈਬਿਟ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆਏਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ profit sharing ratio of the existing partner result in the reconstitution of the partnership firm. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ. ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ. ਸੋ ਇਟਸ true. A change in the profit sharing ratio does not change the relationship among the existing partners. False. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ the partners whose shares have decreased as a result of change in the profit sharing ratio is known as sacrificing partners. ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਦੋਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਇਟਸ ਟਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।